अस्सलाम, मेरा नाम साद लवाल है और आज हम एक और स्टार्टअप ग्राइंड कराची के पॉडकास्ट में हैं। हमारे साथ एक बहुत ही मेरे अच्छे दोस्त और मेरे मामू हैं who has a very inspiring story first of all, but is doing a lot of things in the tech industry भी, और उनकी जो कहानी है that's very impressive। तो सैफी भाई, सफ़ीरुल हक, सैफी भाई बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो अच्छा, मैं आपको सैफी भाई बोल सकता हूँ, सैफी मामू भी बोल सकता हूँ? यस, सैफी भाई इज़ बेटर। तो सैफी भाई, आपकी लैपटॉप्स की कंपनी है इंडस ऑफिस ऑटोमेशन। और उसमें आपके जो कुछ सब्सिडरीज हैं जिसमें लेनोवो shop.pk है, डेल shop.pk है, इनके बारे में कुछ बताएंगे ये हैं क्या और करती क्या है? Okay, fine. Basically, I'm director of Indus Office Automation since it's a 20 plus year old company. 98 से है। हम ऑफिशियल लेनोवो के पार्टनर हैं, डेल के पार्टनर हैं। So we were into trading business when we identified a gap in the market, that was कि पाकिस्तान में अगर किसी को कोई ऑफिशियल प्रोडक्ट ख़रीदनी होती है तो उसको कोई ऑफिशियल स्टोर नहीं मिलता जहाँ से उसको फैक्ट्री सील्ड प्रोडक्ट मिल जाए विद excellent quality factory sealed product with free shipping across Pakistan. So we identified that gap and we shared it with our principal brands, which are Lenovo and Dell. So initially it was with Lenovo and later on it was with Dell. So we shared the idea that let's move on into the retail sector in Pakistan and we offer this service. And with partnership of Lenovo and with partnership of Dell, we launched official stores of Lenovo and Dell in Pakistan. So through that, anyone in Pakistan from any region, anywhere, they can place an order directly to the official store. आपको excellent service मिलती है, product specification, run time 24/7, WhatsApp, Facebook पे आपको update मिलती है, and you can identify the best model for yourself, and that will be shipped to you directly from to their premises across Pakistan with free shipping. Second service जो हमने start की, that was with Kispay. We offered laptops on installments. We are the first ones जो pioneer थे Kispay के साथ जिन्होंने agreement किया और हमने ये launch किया 0% interest rate पे। किसी को भी हम कोई सा भी laptop offer करते हैं with 6 months installment on 0% interest rate. So that kicked off with both the brands and mashallah it's running successfully. So that's all about it, about the business thing. ग्रेट। तो सैफी भाई, आपके बारे में सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग चीज़ है जो जिसकी वजह से मैं भी इतना इंस्पायर्ड हूँ और मैं चाह रहा था कि और तक ये कहानी भी पहुँचे, काफ़ी लंबी ऐसे है, काफ़ी कुछ है जर्नी में सीखने को। मगर अगर हम मुख्तसर कर पूछें तो पहले तो वी कैन स्टार्ट ऑफ कि आपने पढ़ा कहाँ से और क्या किया, व्हाट वाज योर फैमिली बैकग्राउंड, कहाँ से है? ओके, सो एक एज यू नो सिंस यू आर माय रिलेटिव, एक कम्युनिटी है पंजाबी सौदागरान दिल्ली, आई बिलोंग टू दैट। हम कहलाते हैं दफ्तर वाले। विद इन दैट कम्युनिटी अल्लाह वाले बहुत सारे वाले हैं, तो उसमें से हम भी एक हैं। सो बेसिकली बिजनेस बैकग्राउंड कम्युनिटी है, तो सारे जितने भी रिलेटिव, चाचा मामू ताया, सब कारोबार ही कर रहे होते हैं, तो इंस्पिरेशन तो वहीं से आई कि आई हैव टू डू बिजनेस। इनिशियली आई वाज इनटू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और मैंने बड़ी मेहनत की और मैं उसके अंदर बड़ा अपना सर खपाता था, बट सम हाउ द अदर आई लैंडेड इनटू अ बिजनेस स्कूल। आई स्टार्टेड स्टडीइंग ओवर देयर और देन एट अ वेरी लेटर स्टेज आई रियलाइज कि बेसिकली आई एम अ बिजनेस गाय, आई एम नॉट अ इंजीनियर, एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्पेशली आई एम नॉट दैट। So then I started off my career in 98 and went into trading business. Initially हम क्या कहते हैं प्रिंटिंग में काम करते थे, प्रिंटर्स का काम करते थे। Then later on in 2007 we shifted to laptops and desktops and servers. And now we are official partners with Lenovo and Dell. We are platinum partners with Lenovo and official partner for Dell in Pakistan. For laptops, desktops, servers and everything what they produce, we sell it into the Pakistani market, into the retail sector, into the corporate sector, and as well as the e-com sector.
We are official. We have official stores of Dell and Lenovo at Daraz as well. Alibaba के साथ भी काम करते हैं हम और उनके major partners में से शुमार होते हैं. Apart from that, I'm also working as a consultant for a brand, Chinese brand है, और world number 2 brand in accessories market, that is Rapu. उसका मैं I'm working as a consultant country manager for Pakistan, and I have introduced that brand in Pakistani market like 2 months back. वाह. Apart from that, we are into so ये 3 basic sectors हैं. एक corporate है, एक channel है और तीसरा e-com है. इन 3 में हमारा core business होता है. Education की जहाँ तक बात है, so I graduated, my basic graduation was matriculation in 99, and then I went for pre-engineering from DJ Science College, and then I went for my master degree that was in finance and marketing, and then I went for my MPhil actually, and that was in supply chain management. इतना पढ़े हुए दिल्ली वाले. So I completed my, actually not completed, आपकी education तो हमेशा चलती रहती है, but I completed my MPhil in 2012. Wow. So I was MPhil क्या होता है? MPhil is one step below PhD doctorate. अच्छा, तो मास्टर्स होता है फिर मास्टर्स होता है, उसके बाद MPhil होता है, उसके बाद डॉक्टरेट. मुझे लगता है मास्टर्स के बाद. So I was one step below. मेरा शौक था कि मैं PhD डॉक्टरेट की डिग्री कंप्लीट करूं, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक टाइम नहीं मिला. बट यस, समहाउ अगर ज़िंदगी में मौका मिला तो ज़रूर करेंगे. डॉक्टर सैफी मे बी. तो आपने मुझे बताया था कि आपकी जो फीस होती थी वो आप खुद ही फाइनेंस करते थे. यस, बेसिकली हुआ कुछ इस तरह से कि आई स्टार्टेड वर्किंग वेरी अर्ली, जस्ट लाइक यू. आई स्टार्टेड वर्किंग एट 14. मैंने क्या करते थे? उस वक्त मैं वेबसाइट्स बनाता था. यस, उस वक्त मैं वेबसाइट्स बनाता था, लोगों की विंडोज़ इंस्टॉल करता था, लिनक्स इंस्टॉल करता था उनके सिस्टम्स में, और उनसे फ्रीलांस काम करके पैसे चार्ज करता था. तो ये छोटा मोटा काम करके मैं चलता था. फिर लेटर ऑन जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की इन प्रिंटर्स एंड प्रिंटर्स, कार्ट्रिजेस, टोनर्स, इसमें काम स्टार्ट किया, तो देन आई स्टार्टेड फाइनेंसिंग माई सेल्फ. तो अल्हम्दुलिल्लाह बाय द एज, आफ्टर द एज ऑफ 16 मैंने अपने आप को खुद फाइनेंस किया और मैंने अपनी तालीम भी खुद मुकम्मल की. तो ये जो एक आप अपनी गाड़ी खुद ख़रीदने वाली चीज़, खुद से कारोबार शुरू करने का, फैमिली बिजनेस आपका क्या था पहले? मेरे फादर का एक्चुअली निटिंग बिजनेस था, जो कि आपने जो ये आपके टी शर्ट्स बनती हैं इसका कपड़ा वो बनाते थे. बट एक अपॉर्चुनिटी यही आती है ज़िंदगी में कि जब कोई चीज़, किसी चीज़ का डाउनफॉल होता है तो किसी चीज़ का राइज भी होता है. सो बाय द टाइम उस बिज़नेस का अगर डाउनफॉल था तो मेरे फादर ने मुझे बिल्कुल मॉरली, फाइनेंशियली सपोर्ट किया व्हेन आई एंटर्ड माय बिज़नेस लाइफ. बिज़नेस अपने करियर में जब एंटर हुआ तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरे फादर ने मेरे बिज़नेस में की, दैट वाज 40,000 पाकिस्तानी रुपीज़, जिससे मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था. सो वो कॉन्फिडेंस अगर मेरे वाले साहब ने मुझे ना देते तो शायद मेरा इतना कॉन्फिडेंस या इतना वो नहीं होता. बोथ ऑफ माई पेरेंट्स गेव मी कॉन्फिडेंस कि एक तो सही काम करो, अच्छा काम करो और मेहनत करो, और ये काम पॉसिबल है. उन्होंने बिलीव दिलाया कि तुम काम करके खुद पढ़ सकते हो, दैट इज़ पॉसिबल. सो मेरे वाले साहब का जब बिज़नेस का डाउनफॉल आया तो उसी वक्त मेरा बिज़नेस स्टार्ट हुआ. सो एक ही साल का था वो, और वहीं से वो जर्नी स्टार्ट होती है. एंड देन मैंने हमेशा ये टारगेट किया कि दुनिया में कोई भी चीज़, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अचीवेबल है. तो मैं अपने गोल्स पे रहा, मैं अपने गोल्स को फोकस करता रहा और अपने गोल्स को आगे लेके चलता रहा. और ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आपका विजन क्लियर हो, आप अपने गोल्स को टारगेट सही तरीके से कर रहे हो, तो समहाउ द अदर रास्ते बनते जाते हैं. यू स्टार्ट मीटिंग पीपल जो आप लाइक माइंडेड होते हैं, जो आपके साथ जुड़ते जाते हैं, वो आपको आइडियाज़ देते जाते हैं, अपनी गलतियों से सिखाते जाते हैं. अगर आपने सही लोगों को अपना मेंटोर मान लिया है, ना मिले हुए भी, कि आप वो किसी मकाम पे पहुंच गए हैं और आप उस मकाम पे पहुंचना चाहते हैं, सो व्हाट यू स्टार्ट डूइंग इज़ यू जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग देम कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, वो क्या स्टेप्स ले रहे हैं.
उनका अगला बिजनेस में स्टेप क्या है, वो किसको एक्वायर कर रहे हैं, किसके साथ पार्टनरशिप्स जोड़ रहे हैं, आपका रेफरेंस ग्रुप क्या है, आप किन लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, किन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, आपका सर्कल क्या है, आप अपने सर्कल को एक्सपैंड करते जाते हैं, आप कॉन्फिडेंस लेते जाते हैं। बस 2 चीज़ें आप ज़रूर याद रखें अपनी ज़िंदगी में, एक मेहनत करना, एक मेहनत करने वाला और एक सच बोलने वाला, वो कभी नीचे नहीं जाते। जैसे द मोमेंट यू डाइव इनटू अ स्विमिंग पूल, अगर आपका सांस बंद है तो आपने अल्टीमेटली ऊपर आना है। इसी तरह जो सच बोलेगा और मेहनत करेगा ही वो ये हो सकता है कि वक्ती तौर पे उसके ऊपर थोड़ा सा टफ टाइम हो, उसकी लक ना चल रही हो, या वो कोई अपनी सिस्टम में कोई एरर कर रहा हो जिसकी वजह से वो क्लिक ना कर रहा हो, लेकिन जो शख्स सच बोल रहा होगा और मेहनत कर रहा होगा वो अल्टीमेटली उसने ऊपर आना है। टाइम लग सकता है, हर एक की अपनी जर्नी है। ओबामा 55 की एज में रिटायर हो रहा है, ट्रंप 70 की एज में प्रेसिडेंट बन रहा है, हर किसी की अपनी जर्नी है। बट एट द सेम टाइम अगर आपके गोल्स क्लियर हैं, आपका विजन क्लियर है, आपको पता है कि मैं सही काम कर रहा हूँ, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, आपकी नीयत साफ है, सो अल्टीमेटली यू विल रीच योर डेस्टिनेशन सम डे और दैट। सो दैट वाज माय लाइफ गोल ऑन दैट। और बिल्कुल सही बात है कि काफ़ी सारे मेंटोर्स हम लोग बनाना चाहते हैं जिनको वो अप्रोचेबल नहीं होते, बिल्कुल, मगर उनके बारे में उनकी जो टीचिंग्स है वो सब आज के दौर में सबको पता आराम से मिलती मिल रहती जाती हैं। बिल्कुल, तो अगर हम उनको सिर्फ फॉलो करें और उनसे सीखें तो बहुत आराम से उन्हीं की जर्नी को हम रेप्लिकेट कर सकते हैं। आप रेप्लिकेट करते जाएं, आपको उनके एरर्स भी दिखाई देंगे। अगर आप किसी को फॉलो करते हैं और उसका कोई जर्नी फेल होती है, आपको नज़र आएगा कि यार इसने ये गलती की थी इस टाइम पे तो ये फेल हुआ है, तो मैंने ये गलती नहीं करनी। यू कैन बी एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ योर मेंटोर, क्योंकि आपके सामने वो अपने एक्सपेरिमेंट्स दिखाता जा रहा है। बिल्कुल। So it's important how intelligent you are. I was just listening to your previous podcast जो इनका था नशाद भाई का। So what he said was कि हंगर होनी चाहिए। हंगर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप में सीखने की तलब कितनी है। अगर आप में सीखने की तलब है तो आप अपने उस्ताद को तंग, जैसे बच्चा माँ को तंग कर करके खाने पे राज़ी करता है मुझे भूख लग रही है, इसी तरह आप अपने उस्ताद को तंग कर करके उससे सीखने पे राज़ी होकर लेते हैं कि मुझे ये बता दो इसका सोल्यूशन क्या है। ऐसे सो हंगर अगर आप में डेवलप होगी तो जितने स्टार्टअप्स चल रहे हैं ये सब सक्सेसफुल होंगे। आई नो कि आज की तारीख में अगर आपका स्टार्टअप्स का जो सक्सेस रेशो है वो काफ़ी नीचे होगा, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, बट एट द सेम टाइम अगर वो हंगर क्रिएट हो गई तो दे विल फाइंड द राइट वे हाउ टू डू दैट जॉब। बिल्कुल ऐसे ही है और बहुत वैलिड पॉइंट है। और जो ये वाली चीज़ है कि लर्न टू लर्न, मेरे स्कूल का नाम भी लर्न टू लर्न, तो ये जो बात है ये बहुत वैलिड है कि अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, आपको बस ये पता हो सीखना क्या है तो उसके रास्ते निकल आते हैं। गूगल इज़ द बेस्ट टूल। और देखिए इंफॉर्मेशन की एक्सेस होना एक बात है, उस एक्सेस को सही तरीके से यूज़ करना ये दूसरी बात है, उस इंफॉर्मेशन को लेने के बाद उसको सही इंटरप्रेट करना ये तीसरी बात है, और उसको इंटरप्रेट करने के बाद एग्जीक्यूट करना ये चौथी बात है। जैसे कि रेहान भाई कहते हैं कि आज इंफॉर्मेशन तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, बट उसकी सही यूटिलिटी फाइंड करना नहीं है, जब भी तो लोग नहीं उसका फ़ायदा उठा पा रहे। 99% उसको या तो अगर पढ़ भी लेते हैं, एक्सेस भी कर लेते हैं, इंटरप्रेट गलत कर जाते हैं, तो जब भी तो उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। सो कम से कम इतनी बेसिक लर्निंग तो हमें शेयर करनी होगी लोगों से, दैट एवरीवन नोज हाउ टू मेक यूज ऑफ दैट इंफॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूट इट प्रॉपर्ली। ऐसे ही ये वंडरफुल। हौसले की भी खास ज़रूरत है सब आजकल तो एक। बिल्कुल। Yes, that was important in my journey. As I told you, that my parents really bucked me up. और ये सबसे मुश्किल काम होता है कि गिरे हुए को उठाना। हाँ। ये सबसे मुश्किल काम होता है कि आपको हिम्मत इतनी दिला दी जाए। देखें, ये काम अगर आप हिस्ट्री में भी जाएं तो मोहम्मद बिन कासिम ने 16 साल की उम्र में अगर सिंध को फतह किया था तो क्या उसका माइंडसेट होगा, मैं वो सोचना चाहता हूँ। तो अगर एक शख्स, वो ठीक है, वो जो भी हिस्ट्री है, वो इन्वेडर था, वो आया, उसने इन्वेड किया, जो भी, बट बात ये है कि उसका 16 साल में माइंडसेट क्या हो। बिल्कुल। क्या वो आपका माइंडसेट है कुछ करने का 21 साल में, या मेरा है एट द एज ऑफ 39?
सो वो गेम, दुनिया में जितने अचीवर्स हैं ना, इट्स ऑल इन योर माइंड. वो जीतते भी अपने जहन में और हारते भी अपने जहन में. उनके गोल्स भी वो अपने जहन में ही हार जाते हैं कि ये तो नहीं हो सकता, ये कैसे होगा पाकिस्तान में. But a lot is achievable in this country, which is the land of opportunity, because nobody wants to work. ऐसे ही हमारे यहाँ उसी की रिफाइनरी चाहिए, इंसानों की रिफाइनरी चाहिए हमें. तो नहीं, हम बहुत पीछे रह गए हैं, मैं समझता हूँ इल्म और शऊर में. देखिए, वही वाली बात है, इल्म मौजूद है ऑनलाइन, शऊर नहीं है उसको हासिल करने का. तो आपके ख्याल से क्या सबसे अच्छा तरीका है शऊर फैलाने के लिए? देखें, जिस स्टेज पे आज हमारी कौम खड़ी हुई है और जिस स्टेज पे हमारा मुल्क आ चुका है, एक तो ये कि इतनी मैसिव पॉपुलेशन में शऊर पैदा करना आसान नहीं होता डंडे के बगैर. तो पहली चीज़ तो ये कि हमें स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ लानी पड़ेगी चीज़ों को आम करने के लिए कि वो लोग सही रास्ते पे, सही ट्रैक पे चलें. डंडा बहुत ज़रूरी है, और ये दुनिया के हर मुल्क में होता है. यही कौम 1.5 घंटे की फ़्लाइट लेके दुबई जाती है और वहाँ एक लाल लकीर एयरपोर्ट पे वो खींचता है कि इसको क्रॉस नहीं करना, और ये अवाम नहीं करती, और 1.5 घंटे पहले इसी एयरपोर्ट पे हर कोई लाइन तोड़ के खड़ा होता है बोर्डिंग के लिए. हर कोई लाइन तोड़ के, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो. बिल्कुल. क्योंकि जब तक स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी, डिसिप्लिन नहीं आएगा, और डिसिप्लिन नहीं आएगा तो आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते. मैंने आज तक किसी अनडिसिप्लिन्ड आदमी को सक्सेसफुल नहीं देखा. आपको जिंदगी में कोई अनडिसिप्लिन्ड आदमी सक्सेसफुल नजर नहीं आएगा. ये जरूर आपको मिलेगा कि सक्सेस आने के बाद वो अनडिसिप्लिन्ड हो गए, क्योंकि उनको इतनी चीजें मिली कि वो उनके पास से डिसिप्लिन चला गया. लेकिन सक्सेस का राज डिसिप्लिन में है कि कंटिन्यूस एफर्ट विद गोल, विद विजन, विद स्ट्रैटेजी, विद स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते हैं. बिल्कुल वैलिड पॉइंट है. कंसिस्टेंसी के साथ. और वो कंसिस्टेंसी जब कौम में आएगी, हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी नहीं है ना. नहीं. हमारे यहाँ तालीम भी नहीं है, शऊर भी नहीं है, सख्ती भी नहीं है, डंडा भी नहीं है. तो सबसे पहले तो आपको इन ऑर्डर करना पड़ेगा चीज़ों को, सिस्टम को इन ऑर्डर करना पड़ेगा. और सिस्टम इन ऑर्डर करना इतनी मैसिव पॉपुलेशन के साथ, बीइंग द 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इट्स नॉट अ इजी टास्क. बिल्कुल. तो पहला स्टेप तो लें, सिस्टम तो इन ऑर्डर करें, तो फिर आगे अगली बात आएगी. ग्रेट. तो आपके केस में वालिदैन काफ़ी हौसला दिया. एक आम बंदे को क्या आपके ख्याल से एक मशवरा होना चाहिए कि उसकी हौसला अफजाई हो कि हमारा के लिए, कारोबार शुरू करने के लिए? क्योंकि शुरू करना इज़ आई थिंक द बिगेस्ट थिंग. हम लोग ओवरथिंक बहुत कर जाते हैं और फिर नहीं कर पाते. और जो अगेन हौसला टांग खींचने वाले ज़्यादा लोग होते हैं हमारे यहाँ, तो उसको ओवरकम. पहले तो ये आइडेंटिफाई करें, दुनिया के अंदर या ज़िंदगी में आम किसी भी माशरे में 2 तरह के लोग होते हैं. एक होते हैं लीडर्स और एक होते हैं फॉलोअर्स. हमारे यहाँ मोस्टली फॉलोअर्स कारोबार कर रहे हैं और लीडर्स जो हैं वो टांग खींच रहे हैं. ऐसा ही हो रहा है. पहले तो ये कारोबार करना ये नेचुरल है, ये आप सीख नहीं सकते. आप ट्रिक्स अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि एक शख्स जिसके अंदर ये नेचुरल इनबॉर्न लीडर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सेल्फ बकअप करना होता है आपको. कोई आपको पीछे नहीं आके कहता 9 बजे क्यों नहीं पहुंचे. कोई आके पीछे नहीं पूछता कि 5 बजे तुम घर क्यों नहीं गए. आपको खुद बकअप करके अपने टारगेट्स, गोल्स अचीव करने होते हैं. तो नंबर 1 कि पहले तो वो लोग आइडेंटिफाई हो, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब. नंबर 2, उन लोगों के अंदर राइट आइडेंटिफाइड फॉलोअर्स हों जो उनकी एग्जीक्यूशन में उनकी मदद करें, जिनको बकअप की ज़रूरत है. वो एक लीडर 10 लोग 11 लोगों की टीम को चलाता है. तो हमारे यहाँ वो जो प्लेसमेंट है ना, वही गलत हुई है. जिसको नौकरी नहीं मिलती वो स्टार्टअप के पीछे चला जाता है. उसके अंदर उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो स्टार्टअप को एंड तक पहुंचाए कंसिस्टेंसी के साथ. जब भी वो स्टार्टअप फेल हो जाता है, क्योंकि उस बंदे की आइडेंटिफिकेशन सही नहीं हुई होती. लेकिन अगर उसी बंदे को किसी राइट स्टार्टअप वाले बंदे के अंडर डाल दिया जाता
तो वो भी सक्सेसफुल होता और वो स्टार्टअप भी सक्सेसफुल होता, क्योंकि उसके पीछे एक डंडा मारने वाला बंदा होता। तो वो एक तो वो क्लासिफिकेशन गलत हो रही है, जिसकी वजह से स्टार्टअप्स भी फेल हो रहे हैं, क्योंकि वो उनके अंदर उस शख्स में उसकी जेनेटिकली उसके अंदर इतनी कंसिस्टेंसी नहीं है कि वो खुद से कोई काम कर सके। तो वो 3 महीने में हार जाता है, कोई साल में हार जाता है और वो फिर जाता है। अच्छा, तो वो सिर्फ क्योंकि पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली भेड़ चाल होती है, एक आदमी करोला खरीदता है, सब करोला खरीदते हैं, एक आदमी सिविक खरीदता है, उनको नहीं पता करोला में और सिविक में क्या फर्क है। तो बेसिकली वो भेड़ चाल में वो स्टार्टअप्स क्रिएट हो रहे हैं, वो पैशन नहीं है। जो पैशन वाले स्टार्टअप्स होंगे वो कभी फेल नहीं हो सकते, ऐसा ही है, क्योंकि वो मार खाता रहेगा वो बंदा और सीखता रहेगा और एट द एंड ऑफ द डे अपने गोल पे पहुंचेगा। उसको सुकून, उसकी सोल को सुकून आ ही नहीं सकता जब तक वो अपना गोल रीच ना कर ले। और ये पैशन आपको नहीं मिलता। 90% स्टार्टअप्स वालों से आप बात करें तो वो फॉलोअर्स हैं एक्चुअली। उनकी बात करके उनकी लहजे से पता चलता है। जो यस सर बोल दे, जिसके आइडिया को मैं मुंह पे निगेट करूं और वो कहे हाँ आप सही कह रहे हैं, तो इसका मतलब है वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं था ना। वहीं से पता चल जाता है। और जो पैशनेट होगा वो आपके पीछे पड़ जाएगा, आपने गलत कैसे बोला मेरे स्टार्टअप को या मेरे आइडिया को या मेरी लॉजिक को। वो आपके पीछे, वो आपकी बात ही नहीं सुनेगा। वो अपने, क्योंकि वो अपना पैशनेट होगा, उसको पता है कि मैंने कहाँ पहुँचना है और कैसे पहुँचना है। तो राइट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पीपल, और वो लोग खुद आगे आएंगे। अच्छा, वो लोग सक्सेसफुल भी होंगे, वो टीम लीड भी करेंगे, वो मुश्किल वक्त में भी हौसला नहीं हारेंगे, वो लड़ेंगे, वो अपने गोल के लिए लड़ेंगे। सो असल में क्योंकि जॉब मार्केट हमारी इतनी अच्छी नहीं है, लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो एवरी टॉम डिक एंड हैरी गोज फॉर अ स्टार्टअप बिकॉज दैट्स द इन थिंग, दैट्स द मोस्ट फैशनेबल थिंग। उनका पैशन कुछ नहीं है, उनको अलिफ भी नहीं पता। So that's how what's happening in our society at this point of time. So we need to find the right people जो identify करेंगे बेटा तुम हो और तुम्हारा ये पैशन है, तुमने तो करना है, और तुम जो 3 हो तुम इसके गोल में मदद करो, क्योंकि वो भी चाहिए ना साथ में। बिल्कुल, वो भी चाहिए साथ में, फॉलोअर्स भी चाहिए। लेकिन उनकी जिस तरह हमारे यहाँ सिर्फ, जैसे मैं आज बता रहा हूँ आपको कि भाई मुझे इंजीनियरिंग में डाल दिया था, जो जिसका मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे अपने 3-4 साल बचाने चाहिए थे ना, क्योंकि कोई मेंटोर ही नहीं है जो आपको आइडेंटिफाई करके बताए कि इस बच्चे में सलाहियत ही क्या है, ये बच्चा बेहतर एक्सेल कहाँ कर सकता है। तो दैट्स द रीजन। तो मुझे करके ही तो आइडेंटिफाई नहीं करता इंसान। देखिए, तजर्बा कहते हैं किसको? तजर्बा तो इसी को कहते हैं ना, कि मैं पिच पे जाऊं और देख के बताऊं कि ये पिच जो है ये बेसिकली स्विंग करेगी और ये पिच जो है ये फ्लैट है। तो एक्सपीरियंस तो कहते ही इसी को है ना, कि मैं आपके 4 साल बचा लूँ आपके ज़ाया होने से पहले। और तजुर्बेकार लोग मिलते कहाँ हैं? तजुर्बेकार लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहे क्योंकि हंगर नहीं है। डिमांड होगी तो क्यों नहीं? आपके पास लैपटॉप्स की डिमांड थी कि अच्छे लैपटॉप्स चाहिए, तो आपने ऑटोमेटिकली डिमांड सप्लाई क्रिएट कर दी। बिल्कुल। और वो हंगर आएगी बेसिक एजुकेशन को सही करने से। आपको एक बेसिक एजुकेशन तो पहले फीड करनी पड़ेगी आवाम में, वो बेसिक प्राइमरी, बेसिक सेकेंडरी एजुकेशन, और वो भी आज की अपडेटेड एजुकेशन। क्योंकि जो हमारे यहाँ पढ़ाया जा रहा है दैट इज आउटडेटेड। बिल्कुल। तो वो सिलेबस अपग्रेड हो, वो अपडेटेड एजुकेशन हो, अक्रॉस द बोर्ड एक एजुकेशन हो जो अपडेटेड हो। उसके बाद वो आइडेंटिफिकेशन भी सही होगी, डिमांड भी क्रिएट होगी, हंगर भी क्रिएट होगी। क्योंकि आप राइट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं ना। आप एक आउटडेटेड सॉफ्टवेयर, आप आज डॉस पे क्यों नहीं काम करते? आउटडेटेड है क्यों? तो कोई फायदा ही नहीं है उसका। वो क्या है, करेगा क्या आपके लिए? तो हम वो डॉस इंस्टॉल कर रहे हैं अपने 220 मिलियन लोगों में और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो विंडोज 11 की आउटपुट दे। हाउ इज दैट प्रैक्टिकली पॉसिबल? तो और फिर हमें वो डॉस उड़ा के हमें विंडोज 11 इंस्टॉल करनी है पहले, और उसके अंदर से जब एक हंगर भी जनरेट होगी, आइडेंटिफिकेशन भी क्रिएट होगी, मेंटोर्स भी आगे आ जाएंगे, एक्सपीरियंस लोग भी आगे आ जाएंगे। सो दैट्स हाउ आई वांट टू सी पाकिस्तान इकोसिस्टम टू बी बिल्ड, कि वो राइट बुनियादों पे तो खड़ा हो। अभी तो रैंडम हर दूसरा इंक्यूबेटर, हर बंदा हीरो बना हुआ है। सक्सेस रेशो तो दिखाए ना फ्रीलांसिंग को छोड़ के, क्योंकि फ्रीलांसिंग का इफेक्ट भी पाकिस्तान में सिर्फ इस वजह से है कि हमारा डॉलर 175 रुपए का है। आप $1 का $1 कर दें,
क्या इम्पैक्ट होगा? दुनिया में वो काम कोई नहीं करना चाहता जो हम करना चाहते हैं, क्योंकि हम गरीब मुल्क हैं। मगर एक्सचेंज रेट से तो बाकी मुल्क नहीं बने। तो भाई वो फॉलोअर्स हैं सारे, तो चाइना लीडर्स नहीं है वो। लीडर्स, चाइना ने प्रोडक्शन की अपनी, वो कहता है मैं बनाऊंगा, मेड इन चाइना लग के दूंगा, चाहे एप्पल हो। सही। बात समझ रहे? हम क्या कर रहे हैं, हम एक अमेरिकन दफ्तर का एक कंटेंट लिख के दे रहे हैं जो कि आखिर में उनके नाम से पेश हो रहा है। हमारा नाम किधर है? नोवेयर। एंड वी कैन बी रिप्लेस्ड लाइक दिस। तो ये लॉन्ग टर्म नहीं है। मगर उन्हीं में से तो कंपनीज निकल रही हैं जो सर्विसेज। अभी तो चले फ्रीलांसर जो हैं उनके पास पैसे आते हैं तो ही तो वो कंपनी परफॉर्म अपनी करती है। यार देखो, सर्विसेज में आते हैं। जब कुछ नहीं है ना तो ये अच्छा है। हाँ, अगर कुछ नहीं है ना तो ये अच्छा है। क्योंकि एक ऐसा बंदा जिसके बिल्कुल बेसिक स्किल्स हैं, वो जाता है एपटेक में सीखता है और फिर अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके बाद पैसा आने शुरू होते हैं, तो फिर वो इन्वेस्ट भी करता है, वो अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करता है। देखो, इसका जवाब हम आज नहीं दे सकते। इसका जवाब के लिए हमें 5 साल तो वेट करना है, क्योंकि ये बूम आए हुए साल भी नहीं हुआ ना। ये टाइम विल टेल। सही है। तो ये 5 साल हमें वेट करना होगा। हो सकता है आपकी बात ठीक साबित हो कि उन्हीं में से वो लीडर्स निकलें जिनके पास पैसा आ जाए और फिर वो डिक्टेट करें कि अब हमने ये करना है, और वो पैशनेट भी हों और अपने गोल्स तक पहुंच जाएं। और अगर वो इस पे डिपेंडेंट रहे तो जिस दिन उन्होंने पाकिस्तान को बैन किया फ्रीलांसिंग से, तो हमारी कोई रिप्लेसमेंट बांग्लादेश में, श्रीलंका में बैठी हुई होगी, जो हमसे बेहतर कंटेंट हमसे आधे पैसों में, क्योंकि हमसे वीक इकोनॉमी होगी तो हमसे आधे पैसों में करके दे रही हमें है। लीडरशिप वाली जो स्किल्स है, स्कूल ऑफ लीडरशिप जो काम है, उसको हमें आगे बढ़ाना है कि अपना नाम बढ़ाएं, अपना काम बढ़ाएं। देखिए, जब तक ये जो मेरे स्टोर्स में भी .pk है ना, ये क्या बताता है? आज का दुनिया तो ग्लोबल इकोनॉमी है। ग्लोबल इकोनॉमी है, यस। लेकिन आपकी आइडेंटिटी जब तक नहीं होगी ना, टिल यू हैव योर ओन आइडेंटिटी, you cannot be recognized anywhere in the global market. आपको अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। चाइना ने अपनी आइडेंटिटी क्रिएट की, आपकी आइडेंटिटी नहीं है आज। और यू हैव टू बी यूनिक इन योर वर्क। सही। सो जब तक हम मेड इन पाकिस्तान, प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान, इन्वेस्टेड बाय पाकिस्तान पे नहीं आएंगे, तो जब तक हम ऊपर नहीं आएंगे। ये पहला अच्छा स्टेप है, किस्त पे का है, और इन सब किस्त पे इज वेरी प्राउड स्टेप फॉर इंटायर पाकिस्तान कि भाई वो पाकिस्तान से उठ के यूएस जा रहा है। ऐसे हजारों होने चाहिए। व्हाई नॉट? कि लोग कहें कि यार ये तो, जैसे अगर आज किसी से पूछे कि दुनिया के कपड़े कहाँ बनते हैं, तो वो क्या कहेगा? कहाँ बनते हैं? पाकिस्तान, चाइना। और जहाँ चाइना पाकिस्तान में कम हो गया। ठीक है, तो लोग कहें कि यार टेक का काम है चाइना, हार्डवेयर चाइना, एवरीथिंग चाइना। अब तो वो अपनी चिप्स भी बनाना शुरू कर लगे। एग्जैक्टली। सो आपको अपनी मार्केट को, अगर आपको वर्ल्ड लीडर बनना है किसी भी जगह पे, तो आपकी यूनिक आइडेंटिटी के साथ आपकी प्रोडक्ट भी आपके नाम से बिकनी चाहिए। जैसे जो आइडेंटिटी है ना, जो मैं आपको बात बता रहा था, जैसे मेरे स्टोर्स के साथ .pk आता है, उसी तरह आपके साथ SG कराची आता है। ये है आइडेंटिटी आपकी, ये है इंपॉर्टेंट, जो आपको यूनिक बनाता है। SG तो कितने सारे, स्टार्टअप ग्राइंड तो कितने सारे, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस कराची इज इंपॉर्टेंट। सो वो आइडेंटिटी जब तक नहीं होगी, यू कैन नॉट बी एम्पावर्ड इन द ग्लोबल मार्केट। पर बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे ना। देखो, वो ही वाली बात जो अभी नौशाद भाई करके गए हैं, देयर आर 5 ways टू रीच योर डेस्टिनेशन। आपके लिए जो सूट करता है आप वो ले। देयर इज नो वन वे, देयर आर 5 ways। डेस्टिनेशन ये होना चाहिए कि मुनाल जाना है, मतलब मुनाल पहुंचना है। कैसे पहुंचूं, कौन सा बेहतर रास्ता है, वो एक्सपीरियंस के ऊपर जाके नजर आएगा कौन सा बेहतर था। ऊपर तो पहुंचो, पहले पहुंच के देखो तो सही, जहां से तुम्हें समझ आता है तुम वहां से पहुंचो। कौन रोक रहा है? बट जब पहुंचोगे तो रिकग्नाइज होगे, और जब रिकग्नाइज होगे तो दुनिया आपके पीछे आएगी। वो कहते हैं ना कि डोंट बी अ फिलोसोफर टिल यू गेट सक्सेसफुल। चाहे जितनी भी अच्छी लॉजिक हो,
जब सक्सेसफुल हो जाओगे तो लोग सुनेंगे। ऐसे इन्फ्लुएंस कम्स। चले ग्रेट। जो बंदा कोई कारोबार शुरू करना चाह रहा है उसके लिए आप क्या कुछ चंद लम्हों में कहना चाहिए? पहले तो किसी तजर्बाकार कारोबारी से जिसको आप समझते हो कि वो आपको ईमानदाराना मशवरा देगा, उससे अपने आप को जज करवाएं। उसके पास काम ना करें, उसके पास अपने आप को जज करवाएं, वो आपको क्या रिकमेंड करता है, और 3 लोगों से करवा लें तो आपको अपना पॉपुलर या अनपॉपुलर ओपिनियन मिल जाएगा, व्हाट अदर्स थिंक। सही है। और अगर वो तीनों मना कर दें और फिर भी आप पैशनेट हो तो देन यू कैन बी वन। क्योंकि जो निगेट कर सकता है लोगों को वो कारोबार कर सकता है, जो यस बॉस कह सकता है वो कारोबार नहीं कर सकता। बिकॉज यू हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग हार्ड डिसीजंस एट मल्टीपल टाइम्स इन बिजनेस। जो लोगों को, अपने से बड़ों को, अपने से ज्यादा अमीर लोगों को जब आप ना कहना सीखते हैं तब आप जीतते हैं। A very unpredictable answer and a very powerful one. बिल्कुल बहुत वैलिड बात है, और जो वो फिर लीडरशिप स्किल्स उसी में होती है। एग्जैक्टली। ग्रेट। चले, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड इट वाज अ वेरी नाइस शो। बहुत मजा आया आपके साथ। आई होप कि आप मिलियंस एंड जिलियंस ऑफ इस तरह के शोज करें विद राइट पीपल, और जो ऐसा कंटेंट क्रिएट करें जो इंस्पायर करे लोगों को, जो ड्राइव करे लोगों को। एक जो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी कमी है ना, वो मेहनत नहीं करते, जान नहीं मारते, और जो कौम जान मारती है ना वो ऊपर आती है। मुझे जान मारने वाले लोग बहुत पसंद हैं, जो लगे रहें अपनी एफर्ट में, जो अपना 110% दें। तो इंशाल्लाह आई होप कि आप वो जान मारेंगे और आप हमें प्राउड करेंगे SG कराची को ग्लोबल लेके जाके, कि आप दुनिया के टॉप लीडर्स को इंटरव्यू करें इंशाल्लाह। थैंक यू, नाइस मीटिंग यू। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।